ते मुख उजले केती छुट्टी नानक ते मुख उजले केती छुट्टी सूही कबीर जी थर हर कंपै बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो थर हर कंपै बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो रैन गई मत दिन पी जाए पवर गए बाग बैठे आए रहाओ काचा करवै रहे न पानी हंस चलिया काया कुमरानी कुआर कन्या जैसे करत श्रृंगारा क्यों रलियां माने बाज पतारा काग उड़ावत भुजा पिरानी कह कबीर ए कथा सिरानी काग उड़ावत भुजा पिरानी कह कबीर ए कथा सिरानी। सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जीओ प्यार नाल सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह सांझी करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का पवित्र हुक्मनामा सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो सतगुरां ने अपार कृपा करके बख्शिश किया है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंग 792 ते सवायमान है। राग सूही जो कि भगती की भावना हिरदे विच पैदा करता है। अकाल पुरख वाहिगुरू ने इस शरीर के विच अपना निवास रख के आत्मा नूं पा के जीवित किया है। एक मिट्टी दे विच खाक दे विच अपनी जोत नूं पा के सुरजीत कर दिता। सारे जीवन का एक मकसद एक ऑब्जेक्टिव गुरु महाराज ने समझाया भाई श्वास बंद होने तो पहला उस वाहिगुरू नूं अपना बना ला, तैयार कर, एक मिक हो जाए। धन धन गुरु अमरदास जी फरमाते हैं हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। गुफा भाव है शरीर, अंग्रेजी कहते केव। गुफा दे विच अकाल पुरख वाहिगुरू ने जियो भाव आत्मा नूं रख के श्वासां दी लड़ी चला दी। श्वासां दे नाल असीं बोल सकते हाँ ते गा सकते हाँ ते श्रवण भी करते हैं। वाजा पवन वजाया, पवन का वाजा वजा दिता भाव श्वासां दे राही इस शरीर नूं जीवित रखिया। वजाया वाजा पौन 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। 9 दरवाजे भाव शरीर के 9 जड़े ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਣਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਈ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ। ਤੈਂ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਮ ਨਵਨਿਤ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੈਂ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਵਨਿਤ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਥਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਈ ਜੋ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਹੈਰਾਨਮਈ ਅਵਸਥਾ। ਜੇ ਉਹ 10ਮ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਮੇਰੀ ਜੀਓ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਮੀਨਸ ਬਾਲ ਰੂਪ, ਨਿਆਣੀ। ਕਿਉਂ ਕੰਬਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ। ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ, ਪੀਓ ਮੈਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਸਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਤਰੀਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਧਨ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖੇ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਭੀ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਮੈਨੇ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਮਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ। ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਮੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ
तो जदों पहला वाल चिट्टा आंदा वो एक चेतावनी आ, एक वार्निंग आ। जे हाले वाहिगुरू नूं नहीं मिलिया ते दर्शन नहीं कीते ते भाई तेरा टाइम मुक्की जांदा। फिर चेहरे ते झुरड़ियां ते जिहड़ी आ चमड़ी वो भी पुरानी शुरू हो जाती आ होनी। फिर बंदा क्रीमां लांदा वख वख तरह दियां भी मेरी जवानी बनी रहे। पर महाराज फरमांदे ने नहीं, तू अपना समा संभाल, जवानी दे विच भी समा संभाल, कल का कुछ पता नहीं। तो वो समा आना भी आ भी जो तेरे वाल चिट्टे होने हैं, उस तो पहले हो सकता मौत लाड़ी तेनों बुला ले। सो गुरु महाराज फरमाते हैं, भंवर गए बग बैठे आए, भंवरे उड़ गए। भाव जिहड़े काले वाल सी, जवानी का जोर सी, वो मुक गया। बग बैठे आए, बग मैंने चिट्टे चिट्टे वाल आ गए रहा। फिर कबीर साहब होर प्यार दे नाल समझाउंदे, कहंदे भी घड़ा जदों कच्चा हुंदा, कच्चे घड़े दे विच पानी नहीं रह सकदा। काचा करवै रहे ना पानी। भाव इस देह दे विचों एक दिन हंस ने उड़ जाना। देह कच्ची है, जो उपजे सो बिनस है, परो आज कै काल। नानक हर गुण गायला छाड़ सगल जंजाल। सारे जंजाल छड़ दे, माया दे ख्याल, माया दी इच्छा सब छड़ दे। तू वाहिगुरू दे गुण गा, मौका हाल नहीं। हंस चलिया काया कुमलानी। जदों हंस निकल गया इस काया दे विचों ते काया कुमला जाएगी। भाव मूव नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, काम नहीं करेगी, मिट्टी हो जाएगी, गल सड़ जाएगी। फिर बहुत सोहनी एग्जाम्पल दी है कबीर साहब ने। कुआर कन्या जैसे करत शिंगारा। कुआरी जिहड़ी कन्या वो बड़े तरह के शिंगार करती आ भी मेरा खसम आके मैनू मिले, मेरा विआह होए, मैं रंग रलियां माणा। क्यों रलियां माणे बाज पतारा। पर मारे कहते दुनिया ऐसे तरह कई तरह के शिंगार करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। कभी इंडिया के विच घर ले लिया, कभी स्पेन के विच अपना विला ले लिया, तरह तरह के शिंगार किए, माया के वड्डियां वड्डियां कारां ले लिया, सोहने कपड़े पा ले। भाव ऐसे भी दुनिया कह के वाह वाह कहे, दुनिया के शान शौकत होए, मैनू आराम मिले। पर मारे कहते ने वो सब ठीक है, पर जे तू वाहिगुरू के दर्शन नहीं किते, यह शिंगार का की फायदा। जिस तरह कुआरी कन्या शिंगार कर ले तो उन्होंने अपना पति ना मिले तो शिंगार का की फायदा। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कह कबीर एक कथा सिरानी। कबीर साहब फरमाते ने, मैं माया के कावां नूं परे करने की कोशिश करता। कभी काम का कां आ जाता, कभी क्रोध का कां आ जाता, कभी जरा खिंचा माया की इन्ना मोह आ जाता बच्चों के नाल, वो भी कां कां करी जाता। जिहड़ा मोह है वह भी कां है। कभी लालच आ जाता, लालच का कां आ गया। कबीर साहब कहते मैं बहुत कोशिश की है कावां नूं उड़ान दी, मेरी बांह थक गई है, दोनों बांह थक गई। कह कबीर एक कथा सुनानी, हुण जीवन की जिहड़ी कहानी सी वो तो मुक गई, थक गया मैं। हे मेरे मालका कृपा कर, अपने दर्शन दिओ। साध संगत जी, धन धन गुरु अमरदास जी महाराज 61 साल की उम्र दे विच
गुरु अंगद देव जी महाराज की शरण च आए ने। 61 साल की उम्र के आम तौर पर देखने च आया बंदा कहता हुण आ गई बुजुर्गियां, बह जाओ सटी दे विच, लाओ टीवी ते देखी जो ड्रामे। कोई कोई महाराज की जिन्हां ते कृपा हुंदी आ अपने आप को गुरु की सेवा में ला लेंगे। जिस तरह धन धन गुरु अमरदास जी महाराज ने अपने आप को निछावर कर दिता गुरु अंगद देव जी ने अपने सतगुरों से। 73 साल की उम्र के साध संगत जी कृपा हुई, गुरगद्दी के जोग होए। सतगुरां ने उन्होंने गुरगद्दी के जोग बनाया। 73 साल की उम्र के गुरगद्दी संभाली। फिर साध संगत की 95 साल की उम्र तक धन धन गुरु अमरदास महाराज ने मनुखता की सेवा की। वाहिगुरु हमेशा साडे नाल है। फरीद साहब का बहुत सुंदर शब्द है, फरीदा काली जिनी ना रावया, धौली रावै कोई, कर साई स्यों पिरहड़ी रंग नवेला होए। जदों उन्होंने केस काले सी, भाव जवानी दे विच जिन्हां ने वाहिगुरू का आनंद नहीं माणिया, वो बुढ़ापे दे विच किद्दां मान सकते हैं। फिर फरीद साहब नूं संगत ने कहा, इहदा मतलब फरीद साहब साडी ते कोई आस ना रही। फिर सानू तो सिੱਖੀ का पता ही नहीं सी, सानू तो पता भी नहीं सी भी रब नूं मिलण आए हैं दुनिया दे विच। असीं ते कम्मां कारां दे विच रुझ गए। फिर फरीद साहब ने अगला शब्द रचिया, फरीदा काली धौली साहिब सदा है, जे को चित करे। बड़ा वडमुला शब्द है जिहदे नाल आस बझी जाती है, एक हौसला मिलता भी हे मेरे मालका, जे काली भाव मैं जवानी दे विच मैं तेरा आनंद नहीं माणिया ते बुढ़ापे दे विच भी तू मेरे नाल ही आ। काली धौली साहिब सदा है, फरीदा काली धौली साहिब सदा है, जे को चित करे। तू अपना चित्त ते ला। सो धन धन गुरु अमरदास महाराज ने इन्नी सेवा की 95 साल की उम्र तक। बड़ा अज एक सोहना सुनेहा सारी संगत वास्ते, जिन्नी भी उम्र है तुहाडी सतगुरां की सेवा दे विच ला। अरदास करो मालका अपनी सेवा बख्श। उम्र का कोई तकाजा नहीं, एज डजंट मैटर। सेवा करो, किसी समय भी उस वाहिगुरू के दर्शन हो सकते हैं। बलिहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी। सतगुरु कृपा कर प्यार नाल कुछ समय